Hello everyone. We have already read about the continents. Now today we will read about oceans. Okay? There are 5 oceans. First is Pacific Ocean. What are these 5 oceans? These are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, and the Antarctic Ocean. These are the 5 oceans. Okay? You can also call it Antarctic Ocean, Southern Ocean. First is Pacific Ocean. This is the largest ocean which extends over 1/3 of the globe. What is the speciality of this ocean? It extends to 1/3 of the globe. The Pacific Ocean is circular in shape, it means round in shape, with North and South America lying on one side and Asia and Australia lying on the other side. Okay, एक साइड में तो इसके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और दूसरी साइड में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी इस साइड में भी है, इस साइड में, फिर ये राउंड हो जाता है ऐसे. In the north, it is linked to the Arctic Ocean, while in the south, it merges with the Atlantic and the Indian Ocean. ठीक है? नॉर्थ में ये आर्टिक ओशन से लिंक्ड है और साउथ में ये अटलांटिक और इंडियन ओशन से मर्ज है. द मरीना ट्रेंच विच इज 11,022 मीटर बिलो द मीन सी लेवल एंड इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ. जो मेरीना ट्रेंच है, अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है, वो भी इसी ओशन में लाई करता है. lies under this ocean. It has a coastline of, इसकी coastline देखिए, 1,35,663 किलोमीटर. इतनी लंबी coastline है इसकी. The average depth, पैसिफिक ओशन की डेप्थ कितनी है देखिए, 4,030 मीटर. 4,030 मीटर डेप्थ है इसकी. कितना गहराई में है ये. Atlantic Ocean. This is the second largest ocean and is S-shaped. अब ये S shaped है. ठीक है? It is surrounded by 2 Americas on the west side and Europe and Africa on the eastern side. अब west side में America and Europe and Africa on the eastern side. With the length of 1,11,866 kilometers. The coastline of the Atlantic Ocean is very long and irregular, providing ideal location for natural ports and harbors. और ये natural ports और harbor को ideal location भी provide करता है. It is the busiest ocean. The Milwaukee Deep in the Puerto Rico Trench is the deepest point. इसका deepest point है Puerto Rico Trench, deepest point in the Atlantic Ocean, where its depth goes to 8,600 meter. इसकी depth कहाँ तक जा रही है? 8,600 meter, 605 meter below the mean sea level. The average depth is about 3,330 meter. Now the Indian Ocean. The Indian Ocean is the third largest ocean of the world and is the only ocean to be named after a country. सिर्फ इसी ओशन का नेम है जो किसी कंट्री के नेम से, और कोई भी ओशन किसी कंट्री के नेम से, एंड थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. दिस ओशन इज शेप क्या है इसकी? ट्रायंगुलर. इंडिया इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ दिस ओशन, यानी इंडिया के साउथ में ये ओशन है, इंडिया इसके हेड पे लोकेट है. With Africa lying on to the west and Australia to the east. अफ्रीका इसके कहाँ लाई करता है? वेस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ईस्ट में. The ocean has a coastline. Its coastline is 66,526 किलोमीटर और डेप्थ है इसकी 7,258 मीटर. And the Java Trench is the deepest point. Which is the deepest point? Java Trench is the deepest point in the ocean.
Now the Arctic Ocean. It is the smallest of all the oceans. Smallest, Pacific is the largest and Arctic Ocean is the smallest. It is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. Arctic Circle और North Pole के around है ये. This ocean lies to the north of the North America, Europe and Asia. North America, Europe और Asia के north side में lie करता है. It remains covered with the thick sheet of ice throughout the year. मतलब thick sheet of ice से covered है पूरे साल लगभग Arctic Ocean. Coast line इसकी कितनी है? The coast line is 45,389 kilometer and depth is 4,465 meter. The Fram Basin is the deepest point in this ocean. Okay. The Antarctic Ocean. The Pacific, Atlantic and Indian Ocean merge at a place and are collectively known as Antarctic Ocean. अब इसमें देखिए स्पेशलिटी क्या है? Pacific Ocean, Atlantic Ocean and Indian Ocean merge at a place are collectively known as Antarctic Ocean. जहाँ पे ये आके merge हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? Antarctic Ocean. This ocean is also known as the Southern Ocean, जिसको हम Southern Ocean भी बोल सकते हैं. आप इसको Antarctic Ocean भी बोल सकते हैं और Southern Ocean भी बोल सकते हैं. It's around the landmass of Antarctica. Antarctica के landmass के surrounding है. तो फिर सबसे smallest ocean कौन सा है? Arctic है ना बेटा, अभी ऊपर बताया था ना आपको. यहाँ पे देखिए. The Arctic Ocean is the smallest. Okay? Smallest ocean, Arctic Ocean. ये Southern Ocean. इस पे जो बाकी oceans है ना वो merge हो जाते हैं सिर्फ इस place पे आके. इसको Antarctic Ocean बोलते हैं. ठीक है? It's around the landmass of Antarctica. It has a coastline of about 17,968 kilometer. इतनी इसकी coastline है और depth है इसकी 7,235 meter. The South Sandwich Trench is the deepest point of this ocean. सारे oceans के name भी दे दिए हैं, इनकी coastline का area भी दिया है इनमें और इनकी depth भी दी है और इनके deepest point भी दिए हैं. Other water bodies. अब oceans के अलावा जो water bodies होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? Apart from these oceans, there are smaller water bodies which may be partially enclosed by land. यानी जो land से enclosed होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? These salt water bodies of water are known as seas. Yes, इनको seas बोलते हैं. अब यहाँ पे seas देखिए कितने हमारे वर्ड में. Arabian Sea, North Sea, Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea are some important examples. और भी हैं, ये सब important seas आपके बता रखे हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन है which is the biggest and deepest. इंडियन ओशन के पास में ही है ना? हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है which is the biggest and deepest ocean of the earth. बताइए कौन सा है? Pacific. Yes, deepest and biggest. Yes. Now atmosphere. The earth is surrounded by a thin layer of air. Thin layer of air that is an essential part of our life. यानी अर्थ हमारी थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है जो कि हमारे लिए असेंशियल पार्ट है. दिस इज लाइक अ थिन लेयर ऑफ ब्लैंकेट विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ. वो हम मतलब ये जो लेयर है ब्लैंकेट की, ठीक है, ये हमको एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करती है और हमको एयर प्रोवाइड करती है जो हम ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेने की हमें एयर प्रोवाइड करती है. इट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड कंटेन गैसेस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ. इसके अंदर वो गैसेस हैं जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोसफियर. अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, कितने % कौन सी गैसेस हैं वो हम डील करेंगे.
The atmosphere is made up of mixture of various gases. अब यहाँ पे देखिए mixture of various gases हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये इन सब का मिक्सचर है और इनकी क्वांटिटी बता रखी है कि कितनी कितनी अमाउंट में है. It has 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस. ये सब चीजें मिलके हमारे एटमॉस्फेयर को फॉर्म करती है. While nitrogen is essential to maintain fertility of soil and help plants to grow. अब नाइट्रोजन हमारे लिए किस लिए जरूरी है? सॉइल की फर्टिलिटी के लिए और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. Layer of atmosphere. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition. Composition पे बेस्ड करें तो हम एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड करेंगे. टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो 5 लेयर्स कौन सी हैं इनकी वो बताते हैं हम. स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दीज लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. Again, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are 5 layers of atmosphere. Student, please join timely. Okay. The thickness of each layer differs. अब हर लेयर की जो थिकनेस है ना वो अलग अलग है. All human activities and weather changes take place in the lowest layer, that is the troposphere. यानी ह्यूमन एक्टिविटीज और जो वेदर के चेंजेस है वो किस में होते हैं? सबसे लोएस्ट लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फियर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Air has weight and it exerts pressure on the surface of the earth. Air का weight होता है और ये प्रेशर को exert करता है अर्थ के सरफेस पे. Which changes due to the height and temperature. अब जो एयर का प्रेशर है ना वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिफरेंट होता जाएगा हाइट के अकॉर्डिंग. इट इज डेंस नियर द अर्थ सरफेस. अब अर्थ के सरफेस पे ये डेंस होगा यानी घना होगा. एंड द प्रेशर टू इज द हाइएस्ट और प्रेशर भी हाईएस्ट होगा. द एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द हाइट. अब जो एटमॉस का प्रेशर है वो जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते जाओगे ना ये डिक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे थिक होता जाएगा, डेंस होता जाएगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर. और यहाँ का जो प्रेशर है वो भी हाईएस्ट हो जाएगा नीचे आते ही. The air becomes thinner and thinner as one goes higher. जैसे ही कोई आदमी ऊपर जाता जाएगा तो एयर थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी उसकी लेयर. टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज. और क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही हाइट इंक्रीज होगी. यानी हाइट इंक्रीज हुई, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ. अगर हाइट डिक्रीज हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसमें. In areas of high temperature, the air pressure is low as air expand, but in colder areas pressure is high. ठीक है? हाई टेम्परेचर एरिया में एयर प्रेशर लो होगा क्योंकि एयर एक्सपैंड होती है, लेकिन जो कोल्डर एरियाज है वहां पे प्रेशर हाई होगा. It is the difference in atmospheric pressure over different areas which makes air move. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अलग अलग एरियाज को जो एयर को मूव करने में हेल्प करता है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब जो मूविंग एयर उसको हम क्या बोलेंगे? विंड. और विंड कैसे ब्लो करती है? ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरियाज में ब्लो करती है. दिस कॉजेज. अब इससे जो मूविंग एयर है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरियाज में मूव करती है इससे हमारे वेदर के अंदर चेंज आएगा, वेदर कंडीशन चेंज होती है हमारी. ठीक है, इट कॉज चेंजेस इन वेदर कंडीशन.
नाउ बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर क्या है? The biosphere is the narrow zone of the contact where lithosphere, hydrosphere and atmosphere come in contact with each other. यानी हमने जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और जो एटमोस्फेयर है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, वो स्फीयर है. ठीक है आपका बायोस्फीयर. द वर्ड बायो मीन्स लाइफ. In it is in this sphere that all forms of life exist and makes Earth a unique planet. यानी बायोस्फीयर के अंदर ही जो लाइफ है वो पॉसिबल है, तो ताकि सारे जो एनिमल हैं, प्लांट लाइफ है, ह्यूमन है, वो सारे एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर. फ्रॉम ए माइन्यूट बैक्टीरिया. यस, प्लांट्स बेटा हमारे साथ ही तो है ना. एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब हम सब बायोस्फीयर के अंदर ही तो एग्जिस्ट करते हैं ना. फ्रॉम ए माइन्यूट बैक्टीरिया टू ह्यूज वेल्स. छोटी बैक्टीरिया से लेके बड़ी वेल तक ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड ग्रो इन द बायोस्फीयर. अब यहाँ से देखो आपकी और भी क्लियर हो जाएगा. यानी छोटे बैक्टीरिया से लेके जो कि विजिबल ही नहीं है आंखों से, जो कि आप जिसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से जो विजिबल है, उससे लेके वेल तक का, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक जो बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं. विच प्रोवाइड्स ए सुटेबल हैबिटेट फॉर ऑल. क्योंकि ये सबको सुटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एनिमल अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अपनी आसपास की सराउंडिंग कंडीशंस के अंदर. लिविंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट. अब यहाँ पे देखिए, ये आपका है बायोस्फीयर, जिसमें देखिए एनिमल लाइफ भी है, प्लांट भी है, ह्यूमन भी है, एंड जो वाटर एनिमल्स हैं वो सब भी एग्जिस्ट करते हैं. ये हमारा बायोस्फीयर है. हम अभी बायोस्फीयर के अंदर रह रहे हैं सब. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, and they are interrelated and at the same time dependent on their immediate surroundings. जो plants और animals है ना, interdependent है आपस में. ठीक है, और अपनी जो immediate surrounding है उन पे भी वो dependent है. The surrounding within which all the organisms survive is called environment. यानी जहाँ पे हम आसपास में जहाँ पे हम रह रहे हैं, चाहे वो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, वो हमारा क्या एनवायरनमेंट है. जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है, वो हमारा एनवायरनमेंट. द 3 डोमेन्स दैट इज लैंड, एयर एंड वाटर इंटरैक्ट एंड अफेक्ट ईच अदर. इफ वन चेंजेस द अदर गेट्स चेंज ऑटोमेटिकली. अगर एक चेंज होता है तो बाकी सारे अपने आप चेंज हो जाते हैं. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर हमारे जो नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो हमारा जो पूरा लाइफ साइकिल है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. अब ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट, अब ये कैसे एक इफेक्ट डालती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज ने एनवायरनमेंट पे. ठीक है. द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली. आपको सबको पता है कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है. दिस इंक्रीजेज द वर्ल्ड डिमांड ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड टू मिनरल्स. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, हमें डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड चाहिए तो सप्लाई भी चाहिए. तो इसने क्या किया है, फूड से लेके मिनरल तक सारे रिसोर्सेज की डिमांड को बहुत इंक्रीज कर दिया है. ट्रीज आर बीइंग कट ऑन ए लार्ज स्केल. अब पेड़ इतने काटे जाने लगे क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए सप्लाई को बढ़ाने के लिए लार्ज स्केल पे कटिंग ट्रीज हो गया है. मिनरल्स बहुत एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं. ठीक है. Does man ever pause to think about its impact? क्या कभी इंसान ने इसके इम्पैक्ट के बारे में सोचा कि अगर हम इतनी रैपिडली ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं. डू वी अंडरस्टैंड हाउ दिस इज डिस्टर्बिंग द बैलेंस इन नेचर. कि जिस तरह से हम रैपिडली ये प्लांट्स को या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो इससे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा नेचर के अंदर. की प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस रेनफॉल. अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, और इससे क्या होगा, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. आपके जो जितने भी फॉरेस्ट हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. इट पोल्यूट्स द रिवर पोल्यूट हो जाएंगे, और एटमॉस्फेयर भी.
क्योंकि अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड हो जाएगा। कैसे एयर प्यूरिफाई होगी, कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे उसमें? इसके जो बैड इफेक्ट्स, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खराब होगा। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब इंडस्ट्रीज के अंदर से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं या व्हीकल्स में से निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है बहुत इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अनइवन राइज इन टेम्परेचर, दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। इट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत भयानक परिणाम निकलेंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट अवर ग्रीड एंड लैक ऑफ कंसर्न विल रूइन अवर अर्थ। यानी हमें ये सब समझना होगा कि हमारी जो लालच है हमारे अर्थ को बर्बाद कर रही है। वी मस्ट मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर, हमें नेचर में बैलेंस मेंटेन करना है बाय चेकिंग पोल्यूशन ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। कैसे करेंगे? पोल्यूशन चेक करके लैंड, एयर, वाटर में क्या क्या पोल्यूशन है उसको कम करना है हमें। द अर्थ विल रिमेन ब्यूटीफुल ओनली इफ बैलेंस इज मेंटेन। अर्थ तब सुंदर होगी, तब कब होगी, जब बैलेंस होगा, सब चीजों का बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होते ही हमारी बॉडी में तो हो जाती है ना, अगर बॉडी में कोई भी चीज का इम्बैलेंस हो जाए, सब चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए नेचर और मैन के बीच में, तभी हमारी अर्थ हमारे लिए रहने की जगह बन पाएगी। अदरवाइज हमको इसका हार्म भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट और करवाऊंगी मैं आपको, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देखिए। फर्स्ट इज, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, एरियाज ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, इट इज अपर सरफेस। ठीक है, देयर आर मैनी लैंडफॉर्म्स इन दिस स्फीयर, इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म आते हैं। इट कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, 29% आ जाता है। 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे जो एशिया, अफ्रीका है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, हमारे सारे कॉन्टिनेंट आ जाते हैं इसके अंदर। और एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आते हैं हमारे लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर, यानी वाटर बॉडीज। ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, सीज, बेज, ओशंस एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। ये सारे जो चीजें हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती है। इट कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। एरिया कवर्ड बाय देम इज 71%. There are 5 oceans. These are Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic. You can also call Southern Ocean. Pacific is the biggest and Arctic is the smallest. ठीक है? Largest and deepest. It is also deepest. And Mariana Trench, the deepest point of the earth, also lies in this ocean. Now, atmosphere. A thin layer of air which surrounds the earth. Thin layer of air. This is land, water and air. Air which surround the earth is called the quantity of amount of different gases are nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases 1%. Together constitute the atmosphere. ये सब मिलके हमारे atmosphere को constitute करते हैं. The density of atmosphere is maximum near the earth and gradually becomes thinner as we go upwards. यानी अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर की है डेंसिटी है वो बहुत थिक है, और जैसे हम गोज अप करते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, तो ये डेंसिटी कम होती जाती है और थिन होती जाती है एयर. नो लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव विदाउट द एटमॉस्फेयर. कोई भी लाइफ बिना एटमॉस्फेयर के सर्वाइव नहीं करेगी. द अमाउंट ऑफ सन रेज, relief features of any place, local condition and even intense human activity can adversely affect the atmosphere. यानी सन रेज की अमाउंट, कोई भी हमारी जो कंडीशन है, यहाँ की ह्यूमन एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत इफेक्ट करती है. हम जितना ही जैसी हमारी एक्टिविटीज होंगी वैसा हमारे नेचर के अंदर बैलेंस या इम्बैलेंस होगा.
अगर हम जिस तरह से पेड़ काटते जाएंगे या अपने पर्सनल अफेयर्स के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम नेचर को हार्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें भुगतना पड़ेगा. नाउ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज दैट sphere of the earth where life forms originate, sustain and grow. अब मेन देखिए यहाँ पे जहाँ लाइफ ओरिजिनेट होती है, सस्टेन बढ़ती है, ग्रो करती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर. यानी राइट अमाउंट में राइट कॉम्बिनेशन होगा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर का, तो वो है हमारा बायोस्फेयर जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके, द डोमेन्स ऑफ द अर्थ इज क्लियर टू ऑल. Okay.